Let's start with illustration number 5. Let's see what they have given. It's on page number 280 of your textbook. If the fourth term and the seventh term are, that is, fourth term is 3 by 4 and seventh term is 3 by 32. Find its 10th term. They have asked us to find out 10th term is equal to what. So let's see, I can do one thing. I can divide both the terms left hand side, that is t4 upon t7 is equal to, can we say 3 by 4 upon 3 by 32. So now t4 is equal to, can we say it is nothing but a into r raised to 3 divided by, this is going to be a into r raised to 6. It is equal to 3 by 4 into 32 upon 3. 3 cancel, 8 left, a cancel, r cube cancel. Here I will be having only r cube. I hope you understand. So can we say it is 1 upon r cube is equal to 8? Can we say it is r cube is equal to 1 upon 8? And that is why r is equal to 1 upon 2. Cube root on both the sides. Now what we can do? They have given t4 is equal to 3 by 4. Can I say ar cube is equal to 3 by 4? So it is equal to a into, what we can do, 1 by 3 cube is equal to 3 by 4. So a is equal to 3 by 4 into, sorry, it's 1 by 2 raised to 3. So a is equal to, this will be taken on the opposite side. So 8. So a is equal to 6. Now it's very easy to understand for all of you. A is equal to 6, r is equal to 1 by 2. We have to find out t10. We can easily find it out by keeping this formula, a into r raised to n minus 1. Fine. Let's go to next example. That is illustration number 6. Let's check. Find the fifth term of the GP, that is T5 is equal to कितना. GP दिया हुआ है 9, -6, 4 and so on. It's fine. Can we say in the given GP जो फर्स्ट टर्म दिया होगा उसको हम लोग A बोलेंगे. R कैसे फाइंड करते हैं? मैंने आपको बताया था फॉर्मूला. इट इज सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. कैन वी से इट इज -6 upon 9. That is going to be -2 upon 3. Now please check. Tn is equal to a into r raised to n minus 1. So a is 9 into r is -2 by 3 and n minus 1, that is 5 minus 1. So 9 into -2 by 3 raised to 4. Now please check. -2 के 4 पावर्स 16 हो जाएंगे and 3 के 4 powers 81 हो जाएंगे. Can I cancel this? So our final answer is 16 upon 9. I hope everyone is understanding. Illustration number 7. Please check. Find the 8th term, that is T8 is equal to कितना, when GP is 1 upon 8, 1 upon 4, 1 upon 2 and so on. Can we say A is equal to 1 upon 8? फर्स्ट टर्म जो भी होगा. R is equal to, चलो एकदम आराम से, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 1 upon 4 upon 1 upon 8. हाउ कैन आई सिंप्लीफाई? 1 upon 4 into 8 upon 1. कैन वी से इट इज 2. सो फाइनली A is equal to 1 by 8 and R is equal to क्या मिल गया हमें? 2 मिल गया. Now Tn is equal to a into r raised to n minus 1. A is equal to 1 upon 8 into r यानी 2 raised to 8 minus 1. T8 फाइंड करना है ना हमें. 1 upon 8 into 2 raised to 7. Please check. 2 raised to 7 यानी it is 128. You can do it in your calculus. 2 raised to 7. सो इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 16 आएगा. सो T8 is equal to 16 is the answer. Is it done? Okay. So let's see.
Illustration number 8. Please verify. If the second term of a GP is 4, so can we say T2 is equal to 4? Find the प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स. हमें क्या करना है, फर्स्ट थ्री टर्म्स के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, दैट इज T1 इंटू T2 इंटू T3 फाइंड करना है. ऑलराइट, चलो अभी दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल. T2 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है. डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Tn? इट इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला a into r raised to n minus 1. Now if you talk about T2, it is going to be a into r raised to 2 minus 1. Can we say this is going to be a into r? अब देखो a into r की वैल्यू 4 दी हुई है, but I am not provided with a or even not provided with r. So what is to be done? I can tell this as result number 1. Now tell me T1 क्या बनता है with the same formula. Can I say T1 हमेशा a होता है, T2 का मतलब ar होता है और T3 का मतलब ar स्क्वायर होता है. पता है आप लोगों को? अगर नहीं पता है तो प्लीज चेक. T3 हम लोग कैसे लिखते हैं, a इंटू आर रेस टू 3 माइनस 1. तो क्या बन जाएगा ये 3 माइनस 1 यानी आर स्क्वायर बन जाएगा. नाउ लेट्स डू वन थिंग. तीनों का हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, a इंटू ए आर स्क्वायर. कैन आई से दिस इज नथिंग बट a क्यूब आर क्यूब. सो कैन आई से इट इज नथिंग बट a आर क्यूब. एंड ए आर की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास है, कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है. सो कैन वी से इट इज 4 क्यूब. So 64 will be the answer. It's a very nice example. 64 will be the answer. Now let's check illustration number 9. The first term and the product of the first three terms of the GP are, first term का मतलब हुआ a is equal to 3 and T1 into T2 into T3 is equal to 216. उन्होंने बोला है हमें कि find out T7 is equal to कितना. It's very easy example. Please check. फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, a इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 216. कैन वी से इट इज a क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 216. वी हैव द वैल्यू ऑफ a, 3 क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 216. आर क्यूब इज इक्वल टू 216 अपॉन 27. सो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो दैट कम्स टू 8. Can we say r cube is equal to 8? So r cube is equal to 2 cube. Cube cube cancel. r is equal to क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. अब हमें a मिल गया, r मिल गया. अब हम लोग क्या करेंगे, T7 फाइंड करेंगे. T7 is equal to a into r raised to n minus 1. a है 3, r है 2, 7 minus 1. It's very simple. 2 raised to 6. चलो करो सब लोग. 2 raised to 6 कितना होगा? Is it coming 64? You can check it in your calculus. So it is 192. T7 is equal to 192. Let's take illustration number 10. The numbers 2, G and 50 are in GP. 2G and 50 are in GP. Find out the value of G. G का वैल्यू क्या होगा? Now it's very simple. I am telling you. आपको पता है हमने एक कॉमन रेशियो R का फॉर्मूला देखा था. क्या देखा था? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और इवन आई कैन से थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, एंड इवन आई कैन से एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म. एक काम करते हैं, तो ये अगर तीनों ये दोनों अगर R के ही फॉर्मूला है तो कहना इसे दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन कोई प्रॉब्लम नहीं करता. एक काम करता हूँ, अब इसको R को यहाँ से हटा देते, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी. Now just do second term upon first term is equal to third term upon second term. चलो देखते हैं. G divided by 2 second term upon first term is equal to third term upon second term. Can I say it is equal to G square is equal to 100? Can we say G is equal to plus or minus 10? थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे. G is equal to वैल्यू आएगा प्लस और माइनस 10. वाई? बिकॉज प्लस 10 का स्क्वायर भी 100 होता है और माइनस 10 का स्क्वायर भी 100 होता है. Is it fine? Okay. Let's start with illustration number 11. If the numbers a, b, c, d
for the numbers a b c d, if b upon a is equal to c upon b is equal to d upon c, show that the numbers a b c d are in gp. Now please check, second term upon first term, third term upon second term, fourth term upon third term is equal to r बोल सकते हैं अपने. नाउ प्लीज वेरीफाई, कैन आई से b अपॉन a इज इक्वल टू r, क्योंकि अगर चारों इक्वल है तो b अपॉन a इज इक्वल टू r बोल सकते हैं. सो कैन वी से b इज इक्वल टू ar, कीप इट एज रिजल्ट नंबर 1. c अपॉन b इज इक्वल टू r भी मैं बोल सकता हूँ, सो c इज इक्वल टू br हो जाएगा. आपको पता है b का वैल्यू तो अभी अभी आपने ar डिसाइड किया, सो ar इंटू r, सो कैन वी से इट इज ar स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड रिजल्ट नंबर 2. प्लीज चेक, d अपॉन c इज इक्वल टू r, d इज इक्वल टू सी आर हो जाएगा. सो और c की वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर इंटू आर, सो कैन वी से इट इज ए आर क्यूब. रिजल्ट नंबर 3. नाउ प्लीज वेरीफाई, अगर कोई भी जो जीपी है उसका फर्स्ट टर्म अगर a है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, फिर ए आर स्क्वायर हो जाएगा और फिर ए आर क्यूब हो जाएगा. हेंस इट इज प्रूव्ड दैट numbers a b c d are in gp. Is it done? Please check illustration number 12. Which term of the gp 0.008, 0.016, 0.032 and so on is 4.096? कैन वी से हमें अल्टीमेटली n फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं. आई कैन सी दिस a इज इक्वल टू 0.008. r की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड टर्म 0.016 अपॉन 0.008, कैलसी में आप लोग कर सकते हो, r आएगा 2. नाउ tn इज इक्वल टू a इंटू r रेस टू n माइनस 1. tn कितना है 4.096 इज इक्वल टू a है 0.008 इंटू आर अभी आपने फाइंड किया 2 रेस टू n माइनस 1. लेट्स डू वन थिंग, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो 2 रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 4.096 अपॉन 0.008. कीप योर कैलसीज रेडी. 2 रेस टू n माइनस 1 तो यहाँ पे सामने कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा. सो अल्टीमेटली 2 रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेस टू, चेक करो चलो कितना आता है, 2 रेस टू 9 आएगा. बेस इक्वल है तो कैंसिल कर दे, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 एंड n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. इज इट फाइन? ठीक है. लेट्स चेक इलस्ट्रेशन नंबर 30. Illustration number 30. If the third term of the GP is the square of the first term, see थोड़ा आराम से, third term of the GP is square of the first term. first term क्या होता है, a होता है, अगर उसके स्क्वायर की बात करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा. and the fourth term is 243. now let's see, थोड़ा आराम से, यहाँ पे अगर मैं एक बात बताऊँ आपको कि T3 क्या होता है, हमारा ए आर स्क्वायर होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर. अगर ये a सामने चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कहना इसे a इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और कुछ तो हो नहीं सकता. सो आई विल कीप रिजल्ट नंबर 1. यहाँ पे ट्राई करते हैं, T4 का मतलब क्या हुआ, ए आर क्यूब विच इज इक्वल टू 243. नाउ प्लीज चेक, a की जगह पे कैन आई कीप आर स्क्वायर, so r square into r cube is equal to 243. Can we say r raised to 5 is equal to 243? so r raised to 5, तो सामने किसके 5 पावर्स हो जाएंगे, 3 के 5 पावर्स हो जाएंगे. so can we say ultimately r is equal to 3. now a is equal to r square, so a is equal to कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा. हमें है ना पूरी जीपी पूछी है यहाँ पे, तो जीपी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 9, फिर कॉमन रेशियो 3 है, सो 27, फिर 81, फिर 243 एंड सो ऑन. दिस कैन बी द जीपी. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 14 देयर आर सर्टेन गुड एग्जांपल्स, वी कैन से प्रॉब्लम सम्स दिए हुए हैं, थोड़ा आराम से करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14 से. अ पर्सन डिपॉजिट्स ₹10,000 इन अ बैंक इन द ईयर 2009
20,000 in the year 2010 and 40,000 in the year 2011. Can I say 2009 में 10,000 रुपए, फिर 20,000 रुपए, फिर 40,000 रुपीज. सो ये पूरा ही जीपी में जा रहा है. द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन एनी गिवन ईयर इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन द प्रीवियस ईयर. यस वी अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो 2 दिया हुआ है. व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन द ईयर 2014. चलो देखते हैं. ये 2009 की बात थी, ये 2010, ये 2011. कैन आई से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. 2012 will be fourth year, 2013 will be fifth year and 2014 will be sixth year. So n is equal to कितना लेना है, 6 लेना है. a is equal to, तो जैसे हमने बताया फर्स्ट टर्म हो जाएगा. r is equal to common ratio is 2. It's very easy now. a into r raised to n minus 1. a is 10,000, r is 2, 6 minus 1. So 10,000, 2 raised to 5. So 32 multiplied by 10,000 comes to 3,20,000 rupees. Tn is equal to 3,20,000 rupees. Now let's check illustration number 15. चलो ध्यान टेक्स्ट बुक में सबका. Water tank of a capacity of 50,000 liter is fully filled up with water. Every week the water level reduces to half of the previous level due to leakage. So यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है 50,000 से. उसके बाद हर बार क्या हो जाता है, आधा हो जाता है. एक वीक के बाद आधा पानी हो जाएगा, उसके एक वीक के बाद अगेन आधा पानी हो जाएगा एंड सो ऑन. सो ये मेरा जीपी बन गया. What will be the level of water आफ्टर 5 वीक्स. आफ्टर प्लीज उसको सर्कल करो, वो जो वर्ड है आफ्टर उसको सर्कल करो. मैं समझाता हूँ क्या है ये. a इज इक्वल टू 50,000 गिवन, r इज इक्वल टू 1/2 एंड n इज इक्वल टू ये 6 बन जाएगा. भाई बिकॉज आफ्टर 5 वीक्स, आपको पता है एज ऑन टुडे को हम लोग फर्स्ट ईयर कहते हैं, फर्स्ट वीक कहते हैं, फिर ये सेकंड वीक, फिर थर्ड वीक, फिर आफ्टर 5 वीक्स यानी दे आर टॉकिंग अबाउट 6. सो whenever word after is there हम लोग n is equal to एक ज्यादा ले लेंगे. ठीक है. so now tn is equal to a into r raised to n minus 1. 50,000 into r is 1/2, 6 minus 1. so 50,000 into 1/2 raised to 5 करना है. 2 raised to 5 यानी कितना होगा, 32 होगा. so this is going to be, you can do 1562.5 liters. ऑल राइट. ठीक है.